وہ دونوں گھوڑوں پر بہت دور نکلے تھے۔ سورج غروب ہو گیا تھا مگر شام کے سائے بھی گہرے نہیں ہوئے تھے۔ سلمان احمد نے واپسی کا اشارہ کیا۔ ان دونوں نے گھوڑوں کا رخ موڑ لیا، دوبارہ تھلچون کی طرف بڑھنے لگے۔ سلمان احمد ہینا کے حوالے سے بات کرنے کے لیے حوصلہ مجتمع کر رہا تھا۔ اس نے فقیر اللہ کو بڑا لالچ دیا، اس کے باوجود دل کی بات زبان تک لاتے ہوئے شدید پس و پیش کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ دونوں تھلچون کے قریب پہنچ گئے۔ بالآخر سلمان احمد نے جرأت سے کام لے ہی لیا۔ چچا فقیر اللہ، میں نے نمبردار صاحب کے گھر کا نمک کھایا ہے، اس کی بیٹی اور بیوی کے ہاتھوں کے پکوان کھائے ہیں، خاص کر ہینا سے مل کر اس کے بارے میں جان کر اس سے ایک دلی رشتہ جڑ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں جمشید جیسے کھردرے اور جرائم پیشہ شخص سے اس کی جان چھوٹے۔ وہ اتنی اچھی، اتنی پیاری اور خاص لڑکی ہے کہ جمشید ذرا بھی اس کی جوڑ کا نہیں ہے۔ میں اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ اس وقت دونوں گھوڑوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سلمان احمد کی بات پر وہ اس طرح چونک اٹھا کہ گھوڑا بھی ذرا سا بدک گیا۔ وہ چند ثانیوں کے لیے جیسے ہکا بکا رہ گیا، پھر اس نے خود کو سنبھال کر سرسراتی آواز میں کہا، سر آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، بہت طوفان اٹھے گا، جمشید کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، میں بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں۔ جمشید نمبردار عنایت کا اور تھلچون کا معاشرہ، مجھے ان سب سے ٹکر لینا ہوگی، اس کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس سے تم سمجھ سکتی ہو میں کتنا سنجیدہ ہوں۔ فقیر اللہ کے چہرے پر سخت تناؤ تھا، آنکھوں میں بہت سے طوفانوں کے آثار مچل رہے تھے۔ وہ سہمی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے ان کی بات کوئی سن نہ لے۔ پھر ایک کمزور سی آواز میں بولا، سر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں کم حیثیت کا خدمتگار بندہ ہوں، میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ایسا نہ ہو میں مفت میں مارا جاؤں۔ سلمان احمد نے کہا، تم پریشان مت ہو، تمہیں کسی بڑے امتحان میں نہیں ڈالوں گا، بس میری چند ہدایات پر عمل کرو، اس کے بعد تمہارا کام ختم ہوگا۔ سلمان احمد اسے بتانے لگا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ دھواں چہرے کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا۔ وہ سمجھ رہا تھا بیٹے کی نوکری کی بات کر کے وہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ سلمان احمد نے بات ختم کی تو اسے اتنی تسلی ضرور ہوئی کہ اس کا کردار اتنا اہم نہیں، اس کا کام زیادہ مشکل نہیں، اسے محض پیغامبری کرنی تھی، کسی تک پیغام پہنچانا تھا، کسی سے جواب وصول کرنا تھا، کسی کی سرگرمی پر نظر رکھنی تھی۔ اس سب کے بدلے اپنے بیٹے کے گھر کی دہلیز پر ہی فارسٹ گارڈ کی نوکری حاصل کرنی تھی۔ جمدر خان فارسٹ آفس کے قریب ہی ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ فقیر اللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ فارسٹ آفیسر کی سرگرمیوں سے آگاہ کرے گا۔ دوپہر کے وقت ان کی ملاقات ہوئی۔ فقیر اللہ نے خبر دی کہ سلمان نے جنگل میں جانے کے لیے گھوڑے منگوائے ہیں، 5 بجے ان کا جنگل کے دورے کا پروگرام ہے۔ یہ سن کر جمدر کی پریشانی کم ہوئی تھی۔ ان پہاڑی علاقوں میں 6 بجے کے بعد اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس کا مطلب تھا فارسٹ آفیسر نے جنگل میں زیادہ دور جانے کا پروگرام نہیں بنایا، کیونکہ 1 گھنٹے میں وہ اس پہاڑی جنگل میں زیادہ دور نہیں جا سکے گا۔ جمشید اور اس کے بندے تھلچون سے 3-4 گھنٹوں کی مسافت پر اپنی کارروائی میں مصروف تھے، اس لیے جمدر آج کے دن کے حوالے سے بے فکر ہو گیا۔ 5 بجے کے قریب اس نے دیکھا سلمان احمد اور فقیر اللہ گھوڑوں پر سوار ہو کر فارسٹ آفس سے باہر نکلے ہیں اور پھر تھلچون کے جنگلات کی مخالف سمت نانگا پربت کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ جمدر حیرانگی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جنگل کی طرف جانے کے بجائے انہوں نے مخالف سمت کا سفر کیوں اختیار کیا ہے۔ وہ فارسٹ آفس کے قریب ہی بیٹھ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ بہت دیر بعد جب شام کے سائے پھیل گئے وہ دونوں واپس آئے۔ جمدر نے ایک درخت کے موٹے سے تنے کی اوٹ میں مخصوص انداز میں سیٹی بجا کر فقیر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے جوابی اشارہ کیا کہ انتظار کرے۔ کچھ دیر بعد فقیر اللہ اس کی طرف آیا، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، باری باری قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ جمدر نے چھوٹتے ہی کہا، چچا فقیر اللہ، شکر ہے یہ فارسٹ آفیسر آج جنگل کی طرف نہیں گیا، کیا وہ کل جانے والا ہے؟ وہ رسان سے بولا، تم لوگ مفت میں ڈر رہے تھے، سلمان صاحب کا جنگل کے معائنے کا پروگرام ہی نہیں، وہ یہاں جمشید کے خلاف کوئی ایکشن لینے نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی کام سے آئے ہیں۔ جمدر نے چونکتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وہ کسی مخبر کی اطلاع پر ہماری چوری پکڑنے نہیں آیا ہے۔ فقیر اللہ نے گہری سانس لے کر بولا، تم بے فکر ہو جاؤ، وہ لکڑیوں کی چوری پکڑنے نہیں آئے ہیں، خود ان کا اپنا دل جو یہاں چوری ہو گیا ہے اس کی تلاش میں آئے ہیں۔ جمدر نے ٹٹوزی نظروں سے اسے دیکھا، اس کے فتنہ پرور ذہن میں ایسی منہ زور بدگمانیاں میں چلتی تھی کہ فقیر اللہ کے دل کے چوری ہونے کی بات کو عام انداز میں نہیں لیا۔ صبح کے وقت ہینا کا مہمان خانے میں چھپ چھپ کر جانے کی بات اس سے ہضم نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے دماغ نے کئی نقطے جوڑ کر ایک فتنہ انگیز کہانی بھی بنائی تھی۔ اب فقیر اللہ کی مبہم بات اس میں نئے رنگ بھرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کہا، چچا میں نے پہلے بھی کہا تھا ایسے نوجوان آفیسر بڑے رنگیلے مزاج ہوتے ہیں، تانگ جانگ میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، ہمارے گاؤں کی کسی لڑکی نے اس کا دل چرایا ہے کیا؟ فقیر اللہ جلدی سے بات بدلتے ہوئے بولا، میرا مطلب یہ نہیں تھا جمدر، سلمان صاحب اصل میں کچھ پریشان ہیں، اس لیے شہر میں اپنے دفتر کے ہنگاموں سے نکل کر کچھ روز یہاں بتانے کے لیے
आए हैं। जमदर के दिल में बदगुमानी की गिरा पड़ चुकी थी। फकीर अल्लाह की बात सुनकर वो मुतमईन नहीं हुआ, लेकिन इसकी बात जुटलाने का फिलहाल मौका नहीं था। इससे तकरार करके इसे नाराज कराने से ज्यादा इसकी हाँ में हाँ मिलाकर इससे काम निकालने में ज्यादा फायदा था। इसलिए इसने मौजू बदलते हुए कहा, ठीक है चचा, हमारी दुआ है फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल की हमारी चोरी भूल कर खुद को ही ढूंढने में मसरूफ हो जाए, मगर आप भी आंखें खुली रखना कहीं थलचून की किसी लड़की पर इसकी नजर ना हो। फकीर अल्लाह तेज लहजे में बोला, तुम इसकी फिक्र मत करो, वो जवान है, बड़ा अफसर है, कोई लड़की पसंद आ गई तो हर्ज क्या है। थलचून के किसी बेरोजगार नौजवान से तो 1000 गुना अच्छा है। तुम ये छोड़ो, सलमान साहब ने एक अहम पैगाम जमशेद को पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। तुम इसे खबर दे दो कि वो बुलंदी से नीचे आकर मुझसे मिले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा बुलंदी तक नहीं जा सकता। जमदर घूरती हुई नजरों से इसे देखते हुए बोला, चचा ये इस अफसर की कोई नई चाल तो नहीं है? इसे कैसे मालूम हुआ कि जमशेद जंगल में है? इसे नीचे बुलाकर गिरफ्तार तो नहीं करना चाहता ये? फकीर अल्लाह नागवारी से बोला, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त फितना फतूर ही पकता रहता है, कभी अच्छा गुमान भी पैदा कर लिया करो। जमशेद के जंगल में होने के बारे में तुमने ही बताया था, सलमान साहब ने तो इसे तलाश करके पैगाम देने का कहा था। जमशेद तजस्सुस से बोला, ऐसी क्या खास बात है चचा, मुझे भी कुछ बताएं ना, जमशेद का अहम साथी हूँ मैं। ये बात सिर्फ जमशेद के लिए है, एक तरह से ये एक समझौता है, कुछ दो और कुछ लो वाली बात है। अगर बात मान ली गई तो तुम सबके वारे न्यारे हो जाएंगे। बस अब तुम जाओ, जमशेद तक ये पैगाम पहुंचा दो। कल दोपहर के बाद जब मैं इससे मिलने आऊंगा वो ऊपर जंगल से उतरकर सब्ज झील तक आ जाए। सब्ज झील जंगल के अंदर एक मुकाम था, थलचून से वहां तक 2 घंटे का घोड़े का सफर था। जमशेद वहां से बहुत ऊपर पहाड़ की चोटी पर मौजूद जंगल में था। फकीर अल्लाह अक्सर सब्ज झील तक जाता रहता था, हमेशा भेड़ बकरियों को साथ लेकर जाता या फिर घर की जरूरत की लकड़ी लाने जाता। आज सलमान अहमद का पैगंबर बनकर जाने वाला था। ये किसी के लिए मोहब्बत का मामला था, किसी के लिए गैरत का। अब ये आने वाला वक्त बताता कि बेचारे फकीर अल्लाह के सारे मामलात में क्या हालत होने वाली थी। सब इंस्पेक्टर फयाज अली ने गेस्ट हाउस पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। सलमान अहमद शदीद परेशानी के आलम में सर झुकाए बैठा था। सब इंस्पेक्टर फयाज अली ने इसे तसल्ली दिलासा दिया, जाए वक़ूआ का जायज़ा लिया, सलमान अहमद से और इसके साथ मौजूद सिपाहियों से कुछ सवाल पूछे। हादसा माँ के हवास दुरुस्त हुए तो इससे भी वक़ूए के बारे में पूछा गया। सलमान अहमद ने एक बार फिर शक का इजहार किया कि इस वारदात के पीछे इसकी बीवी के साबका मंगेतर का हाथ हो सकता है। सब इंस्पेक्टर के पूछने पर इसने जमशेद और इसके हवारी जमदर के बारे में सारी तफसीलात बता दी। इसके अलावा एक दिन कबल गेस्ट हाउस के लान पर हिना के साथ जो कुछ पुरस्कार वाक़या पेश आया था, जिसमें मुर्गी का कटा हुआ सर और धड़ इस पर फेंका गया था, ये वाक़या भी इंस्पेक्टर के गोश गुजार कर दिया। सब इंस्पेक्टर फयाज अली इसकी सारी बात सुनकर बड़ी देर सोचता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, आपकी बातों से ऐसा लगता है मुजरिम शहर में ही आप मियाँ बीवी के ताक़ुब में आए हैं। यहाँ मौका देखकर उन्होंने आप पर हमला किया और दूसरी तरफ गेस्ट हाउस से आपकी बीवी को उठा लिया। इस मामले में यकीनन माधोपुर में भी इनके सहूलतकार मौजूद होंगे, जिनके तावन से उन्होंने इतनी बड़ी वारदात की है। मेरा भी यही ख्याल है इंस्पेक्टर साहब, माधोपुर में इनके बंदे मौजूद हैं जिनकी मदद से उन्होंने मेरी बीवी को अगवा किया है। ये छोटा सा इलाका है, आप इन मुजरिमों को आसानी से तलाश कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर फयाज अली कुछ देर सोचता रहा, फिर सलमान अहमद और अपने सिपाहियों को लेकर गेस्ट हाउस से बाहर निकल गया। गेस्ट हाउस के बाहर खुले खेत थे, इनमें जरा फासले पर 3-4 मकान बने हुए थे। मरकजी सड़क से एक कच्चा रास्ता गेस्ट हाउस की तरफ आता था। हिना को अगर किसी गाड़ी में लेकर जाया जाता तो यही रास्ता इस्तेमाल किया गया होगा। इंस्पेक्टर फयाज अली ने गेस्ट हाउस के बाहर खेतों में दूर दूर तक देखा। इस वक्त शाम हो गई थी। 2-4 मर्द और औरतें खेतों में मसरूफ थे। वो इनकी तरफ बढ़ा। खेतों में काम करने वाले मेहनतकश पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर चौंक से गए। फिर एक उधेड़ उम्र शख्स काम छोड़कर इनकी जानिब आया। इंस्पेक्टर साहब खैरियत तो है, आप किसे तलाश कर रहे हैं? चाचा आप खेतों में यहाँ कब से मौजूद हैं? सब इंस्पेक्टर फयाज अली ने पूछा। वो शख्स उलझी उलझी नजरों से इन्हें देखते हुए बोला, अभी थोड़ी देर हुई है, सब ठीक है ना सर? इंस्पेक्टर फयाज अली ने कहा, 3 से 4 बजे के दरमियान गेस्ट हाउस में एक वारदात हुई है। कुछ लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर की बेगम को अगवा कर लिया। क्या तुम में से कोई इस दौरान यहाँ मौजूद था? इस शख्स ने एक लम्हा को सोचा, फिर खेतों में काम करने वाले मर्दों में से एक को आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाया। इसके बुलाने पर एक नौजवान इसकी जानिब आ गया। वो शख्स बोला, हम तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ खेतों में आए हैं, आप जो वक्त बता रहे हैं इस दौरान अनवर खेतों को पानी दे रहा था, शायद ये आपको कुछ बता सके। अनवर नामी नौजवान करीब आया। वो शख्स बोला, अनवर बेटा, गेस्ट हाउस में 3 बजे से 4 बजे के दरमियान एक वारदात हुई है, तुम इस वक्त खेतों को पानी दे रहे थे। इंस्पेक्टर साहब को बता दो, तुमने इस दौरान कोई खास बात तो नहीं देखी? वो नौजवान कुछ देर सोचता रहा, फिर इंस्पेक्टर फयाज अली से मुखातिब होकर बोला, गेस्ट हाउस के अंदर क्या हुआ है ये तो मुझे मालूम नहीं हो सका इंस्पेक्टर साहब, मगर जो वक्त आप बता रहे हैं इस दौरान मैंने एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूजर गाड़ी देखी थी, इसके शीशे स्याह थे। गेस्ट हाउस में जाकर वो 5 मिनट के अंदर बाहर निकली थी, बहुत तेज़ी से फिर वापस चली गई थी। उन्होंने गेट भी खुला छोड़ दिया था, बहुत देर तक किसी ने गेट भी बंद नहीं किया था। मैं हैरान भी हुआ कि चौकीदार गेट क्यों नहीं बंद कर रहा। खेतों को पानी देकर मैं घर वापस चला गया। इसके बाद थोड़ी देर पहले अब्बा के साथ वापस आया हूँ।
सब इंस्पेक्टर फयाज अली वापस गेस्ट हाउस की तरफ आया। सलमान अहमद ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस नौजवान ने सफेद रंग की लैंड क्रूजर की बात की है। मेरे ख्याल में ये एक मुफीद निशानी है। जी हाँ, मैं इसी लाइन पर सोच रहा हूँ। वारदात के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है इसे ट्रेस करना जरूरी है। माधोपुर छोटी सी वादी है, अगर वादी में आए तो जल्द नजर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता। आपकी बेगम को लेकर वो माधोपुर से चले गए होंगे। सलमान अहमद परेशानी से बोला, माधोपुर से दूसरे इलाकों में जाने के लिए एक ही सड़क है। तकरीबन 1 घंटे बाद वो बड़ी सड़क से जाकर मिलती है। वहाँ से मुख्तलिफ इलाकों के लिए रास्ते हैं। अब कैसे मालूम होगा वो किस तरफ चले गए हैं? इंस्पेक्टर फयाज ने कहा, आप मायूस ना हो, रास्ते में बड़ी सड़क के पास जो पुलिस की चौकी है, मैं अभी वहाँ वाकी टाकी पर बात कर लेता हूँ, सफेद लैंड क्रूजर के बारे में मालूमात ले लेता हूँ। इसने वाकी टाकी पर आगे चौकी से रब्ता शुरू किया। माधोपुर की सिंगल सड़क के इख्तिताम पर जहाँ से बड़ी सड़क शुरू होती थी, ये चौकी वहाँ कायम थी। इसने जरा देर उनसे बात की, फिर राब्ता मुनक़ता करके कहा, पुलिस के मुताबिक वो गाड़ी 5 बजे के आसपास वहाँ से गुजर कर आगे गई है। इसका रुख शहर की तरफ था। अभी 6 बज रहे हैं। इसका मतलब है गाड़ी अभी शहर में नहीं पहुंची है। इसे शहर पहुंचने से पहले ट्रेस करना होगा, वरना शहर के हजूम और अफरा तफरी में कहीं गायब हो जाएगी। इसने फौरन शहर के एक थाने के कंट्रोल रूम से रब्ता किया। गेस्ट हाउस में हुई वारदात के बारे में मुख्तसरन बताया। सफ़ेद लैंड क्रूजर की निशानी बताकर शहर में दाखिल होने से पहले इसे ट्रेस करने की हदायत दे दी। सलमान सदमे से निडाल हो गया था। 1 साल के तवील तरीन मार का आराइयों के बाद हिना को हासिल करने में कामयाब हुआ था, लेकिन इसकी खुशियाँ बहुत मुख्तसर साबित हुई थी। हिना एक बार फिर दुश्मनों के चुंगल में फंस गई थी। एक बार फिर अबला पाई इसकी नसीब ठहरी थी। खुदा जाने अब इसका क्या अंजाम होने वाला था। जमशेद एक पत्थर से टेक लगाए बैठा था। इसके चेहरे पर सख्त तनाव था, आंखें जैसे शोला बरसा रही थी। क्लैशनकोफ पर इसकी गिरफ्त बहुत सख्त हो गई थी। इसके सामने फकीर अल्लाह था। वो इस वक्त सब्ज झील के पास बैठे हुए थे। बैजवी शक्ल की वो छोटी सी झील थी। फकीर अल्लाह ने सर उठाकर हिम्मत से कहा, जमशेद, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए गैरत का मामला है, मगर थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो तो फ़ायदा तुम्हारा ही है। जमशेद फुनकारते हुए बोला, चाचा फकीर अल्लाह, मैं तुम्हें अपनी बरादरी का बुजुर्ग समझकर एहतराम करता हूँ। ऐसी बात कोई और करता तो दर्जनों गोलियां इसके सीने में उतार देता। तुम अपने इस फॉरेस्ट अफसर से कह दो कि ये सौदा मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अगर आइंदा ऐसी बात जुबान पर लाई तो गुद्दी से जुबान खींचकर जंगली कुत्तों के आगे डाल दूंगा। वो मसलहत आमेज लहजे में बोला, जमशेद बेटा, तुम जज्बाती अंदाज से सोच रहे हो। मुझे मालूम है इस वक्त तुम्हें लकड़ी की सख्त जरूरत है। 2 हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद माल नहीं पहुंचा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम ये सौदा मंजूर कर लो, हिना से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दो। इसके बदले फॉरेस्ट अफसर तुम्हें 3 महीने की खुली छूट दे देंगे, जितनी चाहो लकड़ी काट कर आगे ले जाओ। जमदर भी पास बैठा हुआ था। वो बज़ाहिर खामोश था, मगर इसका शैतानी दिमाग बड़े ही मक्काराना तेवरों से इन दोनों की बातें समझने की कोशिश कर रहा था। इसने तलचूर में फकीर अल्लाह से उगलवाने की कोशिश की कि सलमान अहमद का कौन सा पैगाम जमशेद तक पहुंचाना है। अब इन दोनों के सामने वो इस खास पैगाम की हकीकत और नौइयत से आशना हो रहा था। फकीर अल्लाह की बात सुनकर जमशेद तवक्को के मुताबिक भड़क उठा। क्लैशनकोफ लहराकर अपने गुस्से और गैरत का इजहार किया।